Welcome to Bhatek Sikha. I am Smruti Ranjan, your biology educator. We are going to discuss the LTR scholarship test question paper. Let's start one by one. Question number one, given that which class of algae is commonly known as brown algae? Okay. So generally three classes of algae are there. One is green algae, okay, chlorophyceae. Another is brown algae called phaeophyceae. Third is rhodophyceae, red algae. Okay. So according to question, option number B is correct. Then question number two, which is the following is a prokaryotic organism? Okay. Pro means we know. Pro means what? Primitive. Hey. Karyotic means nucleus. Nucleus. So primitive nucleus. So bacteria is a prokaryotic. Okay. Yeast actually eukaryotic, unicellular eukaryotic. Okay. Hydra also eukaryotic but multicellular. Hydra is multicellular, eukaryotic. Yeast is unicellular eukaryotic. So the question में दिया है which of the following is a prokaryotic organism? So answer is A. Question number 3. Infolding of plasma membrane in bacteria are called. Infolding of plasma membrane in bacteria are called as mesosome. Okay. Suppose in prokaryotes, actually in prokaryotes, cell organelles are generally absent in cytoplasm. But ribosomes, a membranous cell organelle present in both prokaryotes and eukaryotes. In prokaryotes, generally cell organelles are absent. Okay. Cell organelles are generally absent. Okay. Mitochondria also absent in case of prokaryotes. So जैसे यूकेरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया सेल रेस्पिरेशन करता है, ऐसे प्रोकैरियोट्स में such as bacteria, mesosome serves as function like mitochondria, similar to mitochondria. मतलब they function like mitochondria like structure. Oxidative enzymes are present in mesosomes. Okay. तो मेसोसोम्स क्या है ना, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया. सपोज दिस इज ए बैक्टीरिया, दिस इज सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया. ओके. एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया एंड दिस इज इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन by modification of cell membrane. There is two types of actually mesosome. One is central mesosome, one is peripheral mesosome. Peripheral mesosome and other is central mesosome. Central mesosome actually जो बैक्टीरिया का जैसे हो गया उसका जो न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस बा न्यूक्लियड हो गया, फॉल्स न्यूक्लियस, उससे जनरली कनेक्ट रहता है. पेरिफेरल मेसोसोम का क्या फंक्शन रहता है ना, वो सेल रेस्पिरेशन एंड एक्चुअली सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है. और सेंट्रल मेसोसोम का जनरली फंक्शन रहता है कि वो सेल डिवीजन में हेल्प करे और जनरली वो सेल डिवीजन के साथ वो डीएनए रेप्लिकेशन भी करते हैं, हेल्प करते हैं. क्या? सेंट्रल मेसोसोम. ओके. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4. ब्रायोफाइट्स आर एक्चुअली जो प्लांट्स है उनको डिवाइड किया है आल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. आल्गी जो होते हैं वो जनरली एक्वेटिक होते हैं एंड नॉन वास्कुलर होते हैं. जैसे उनके पास वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, जाइलम एंड फ्लोएम. ओके. तो ब्रायोफाइट जो है वो एक्चुअली नॉन वास्कुलर, टेरेस्ट्रियल, फास्ट टेरेस्ट्रियल बट नॉन वास्कुलर, जिसमें जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं. एंड देन they are also called non-vascular amphibians by terrestrial amphibians. मतलब एम्फीबिया क्यों बोलते हैं ना, दे रिक्वायर्ड ऑल्सो वाटर फॉर देयर मूवमेंट ऑफ गैमेट्स और फर्टिलाइजेशन. ओके. सो हियर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्रिप्टोग्रामी, मतलब क्रिप्टो मीन्स प्लांट्स विदाउट सीड्स, मतलब सेक्स ऑर्गन इनविजिबल. ओके. और एक है फेनोरोग्राम्स. फेनोरोग्राम्स प्लांट्स विद सीड्स and sex organ visibles. Okay.
तो ब्रायोफाइट्स जो है वो एक्चुअली क्रिप्टोग्राम है नॉन वास्कुलर है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर 5, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स लैक्स, एक्चुअली उनमें वेसल एब्सेंट होता है क्योंकि जाइलम का जो एलिमेंट है, जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स एंड जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, उनमें जाइलम वेसल्स एब्सेंट होता है। फ्रूट्स भी एब्सेंट होते हैं क्योंकि वो नेकेड सीडेड होते हैं, उनमें सीड है बट कवरिंग नहीं है। कंपेनियन सेल्स भी एब्सेंट होता है क्योंकि ये फ्लोएम का पार्ट है। companion in place of companion cells there is presence of albuminous cells, okay, albuminous cells, so answer is all of these. Next slide. A मेरिस्टेम में भी डिफाइन एज ग्रुप ऑफ सेल्स। मेरिस्टेम का मतलब है एक्चुअली जो सेल्स जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं बा मेरिस्टेम सेल्स बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक एक्चुअली एक टिश्यू है जो एक ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलके बना है, जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं मेरिस्टेम। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बिकॉज डिवाइड कंटिन्यूअसली टू गिव्स राइज टू न्यू सेल्स। ओके, देन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट। नंबर 7, द फंक्शन ऑफ रूट कैप इज, एक्चुअली एक रूट में रूट होगा तो टिप पोजीशन में एक रूट कैप प्रेजेंट है, ये है रूट कैप। एक्चुअली रूट का 3 जोन है, जोन ऑफ एक्चुअली मैच्योरेशन जोन एंड दिस इज इलोंगेशन जोन, दिस इज मेरिस्टेमेटिक जोन। ओके, मेरिस्टेमेटिक जोन के बाद जो टिप पोजीशन में रूट कैप होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। इसका फंक्शन है, रूट कैप का फंक्शन है टू पेनिट्रेट इनटू द सॉइल एंड प्रोटेक्शन, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को वो प्रोटेक्ट देता है क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं। ओके, एंड मैच्योरेशन जोन में रूट हेयर जो एक्चुअली देखेंगे तो वो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है, एक रूट हेयर एक सेल है। ओके, तो रूट हेयर मैच्योरेशन जोन में एपिडर्मल लाइक रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो रूट हेयर होता है और टिप पोजीशन में रूट कैप होता है। सो the function of root cap is provide protection to the root. Okay, then pulp of a food is made up of, pulp of food is made up of generally sclerates होगा क्योंकि पेरेन्काइमा तो एक फंडामेंटल टिश्यू है, ये फंडामेंटल टिश्यू है, हर फ्रूट में होता है और फ्रूट में भी वो होता है, बट जो हार्ड पार्ट होता है उसमें जनरली स्क्लेरेट्स प्रेजेंट होता है, बट जो सॉफ्ट पार्ट है वो उसमें पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। बट इसमें पल्प ऑफ फ्रूट दिया है तो स्क्लेरेट्स होगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सीजन व्हिच इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, एक्चुअली photosynthesis divided into light reaction and dark reaction, further light reaction divided into cyclic and non cyclic। ओके, साइक्लिक रिएक्शन वो स्ट्रोमा लामिले में होता है, जो मेसोबिल सेल्स होता है लीव्स का, उसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनिल, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिल होता है, एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक्चुअली थालाकोइड्स स्टाक लाइक अरेंजमेंट होते हैं जिसको ग्राना बोलते हैं, ग्रानार्स कनेक्टेड बाय स्ट्रोमा लामिले। साइक्लिक रिएक्शन जो लाइट रिएक्शन का पार्ट है वो स्ट्रोमा लामिले में होता है, एंड नॉन साइक्लिक रिएक्शन एक्चुअली वो थालाकोइड का मेम्ब्रेन में होता है। नॉन साइक्लिक रिएक्शन में बोथ PS1 PS2 इन्वॉल्वमेंट होते हैं एंड साइक्लिक में ओनली PS1 का इन्वॉल्वमेंट होता है। बट नॉन साइक्लिक में जो PS2 का इलेक्ट्रॉन है उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS2 का थियोफाइटिन है, वो एक्सेप्ट करने के बाद PS2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो शॉर्टेज हो जाता है, इसलिए थालाकोइड का ल्यूमेन में वाटर स्प्लिटिंग होके 2H प्लस प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट होता है, वही इलेक्ट्रॉन PS2 को प्रोवाइड करता है। देन ये जो रिएक्शन है वो जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है एक्चुअली इन द प्रेजेंस ऑफ OEC कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में होता है। ओके, तो एंड देन
सो कार्बन डाइऑक्साइड का जनरली फिक्सेशन बाय रिडक्शन होता है ग्लूकोज को बाय यूजिंग द लाइट प्रोडक्ट्स. Okay, ATP and NADPH2. So answer is option 2. Number 10, the enzymes that fixes atmospheric CO2 in C4 plants. C4 plants actually उसका जो लीफ का एनाटॉमी है उसको क्रांच एनाटॉमी बोलते हैं क्योंकि मेसोफिल सेल्स अंदर में बंडल सेल सेल्स देन vascular bundles is surrounded by bundle cells. Okay, so suppose this is mesophyll cells and this is bundle cells. This is connected by plasmodesmata. ये है mesophyll cells, ये है bundle cells. बंडल सेल्स में एक्चुअली जो पेप कार्बोक्सिलेज व पेपकेज फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. ओके, कार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है बट रूबिस्को एब्सेंट होता है, बट इधर रूबिस्को प्रेजेंट होता है बट पेपकेज एब्सेंट होता है क्योंकि इधर एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आके फिक्स होता है आरयूबीपी के साथ मिलके जो 5 कार्बन है, बट इधर एक्चुअली डी कार्बोक्सिलेशन होता है बॉन्डल सेल्स में एंड इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को इधर C3 साइकिल अगेन रन होता है. ओके, सो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन पेप कार्बोक्सिलेज. ओके, which one of the following is wrong in relation to photorespiration? Actually photorespiration CPM मतलब क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिज्म माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. फोटोरेस्पिरेशन क्यों होता है? क्योंकि हाई लाइट इंटेंसिटी एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन में क्या होता है ना, जो आरयूबीपी है राइबोलोज 1 फॉस्फेट वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम, क्योंकि राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज ये एंजाइम का डुअल नेचर है. कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो एक्सेप्ट कर सकता है और ऑक्सीजन को. मोर अफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड बट इट कैन एक्सेप्ट आल्सो ऑक्सीजन. ओके, ये मिलके क्या होता है ना 1 मोलिक्यूल ऑफ पीजीए मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरेट एंड प्लस 1 mole of glycolate. Okay, actually photorespiration क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिज्म माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. It occurs in chloroplast. Yes, it occurs in daytime. Actually photorespiration क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू हाई लाइट इंटेंसिटी एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन फोटोरेस्पिरेशन होता है. ये नहीं होगा तो क्या होगा? देखो पिगमेंट का क्या काम है. वी नो फोटोरेस्पिरेशन इज ए वेस्टफुल प्रोसेस बट इट आल्सो ए यूजफुल प्रोसेस बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स पिगमेंट्स by chlorophyll from photo oxidation damage due to high light intensity. हाई लाइट इंटेंसिटी तो डे टाइम में होगा ना, डे टाइम में हाई लाइट इंटेंसिटी होगा तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा. इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट्स. नहीं, C4 प्लांट्स में फोटोरेस्पिरेशन नहीं होता है क्योंकि C4 प्लांट्स का जो एनाटॉमी है लीव्स का वो क्रांच एनाटॉमी होता है. उसमें जो C3 साइकिल है वो होता है बंडल सीड सेल्स में. बंडल सीड सेल्स में डीकार्बोक्सिलेशन वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई रहता है उसमें, तो उसमें चांस नहीं रहता है फोटो रेस्पिरेशन होना. क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन क्यों होगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाई O2 का कंसंट्रेशन लो होने में, मतलब जब ऑक्सीजन ज्यादा हो. C4 प्लांट्स में जो C3 साइकिल है वो बंडल सेल्स में होता है तो उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल रहेगा. हाँ, चांसेस है C3 साइकिल में हो सकता है क्योंकि C3 साइकिल में जो हर सब कुछ मेसोफिल सेल्स में होता है. मेसोफिल सेल्स में C3 साइकिल होता है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है. तो ड्यू टू हाई लाइट इंटेंसिटी एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन C3 प्लांट्स में वो हो सकता है जो फोटो रेस्पिरेशन. ओके, क्वेश्चन दिया है which one of the following is wrong in relation to photorespiration. एक्चुअली ये रॉन्ग है. ओके,
12. What is C2 cycle? C2 cycle actually otherly known as PCO cycle, photosynthetic carbon oxidation, also known as glycolate. क्यों ग्लाइकोलेट साइकिल? ग्लाइकोलेट एक 2 कार्बन है तो इसलिए इसको भी C2 साइकिल बोलते हैं। देखो एक्चुअली C2 साइकिल फोटो रेस्पिरेशन अभी मैंने बताया, क्योंकि वो RuBP जो 5 कार्बन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम वो क्या देता है ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ PGA 3 फॉस्फोग्लिसरेट प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या, फॉस्फो फॉस्फो phosphoglycolate. Okay, 1 molecule of phosphoglycolate. So 1 molecule of PGA and 1 molecule of phosphoglycolate देता है। Okay, then what is C2 cycle? C2 cycle is glycolate cycle. Option A is correct. Of the following is a hypothetical hormone. जिबरलिन नहीं होगा, ऑक्सिन नहीं होगा, साइटोकाइनिन नहीं होगा, फ्लोरिजन। Actually suppose this is a plant, this is root system, below the ground and above the ground it is shoot system. This is a leaf suppose. Actually leaves में क्रोमोप्रोटीन प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन में क्रोमोप्रोटीन है। क्रोमोप्रोटीन मतलब एक प्रोस्थेटिक बा कोफैक्टर और पिगमेंटेड प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो लाइट को ऑब्जर्व कर सकता है। एक्चुअली इस क्रोमोप्रोटीन का नाम है फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम एक्चुअली रेड एंड फार लाइट ऑब्जर्व कर सकता है। ऑब्जर्व करने के बाद कुछ इधर एंजाइम एक्टिवेट होता है। एंजाइम एक्टिवेट होने के बाद जनरली बोलते हैं एफटी एंजाइम। एफटी एंजाइम एक्टिव होने के बाद एक एक्चुअली इसमें एक हार्मोन रिलीज होता है, हाइपोथेटिकल हार्मोन जो डिस्कवर अभी तक नहीं हुआ है, बट मानते हैं कि एफटी जीन को भी कुछ साइंटिस्ट मान लेते हैं कि वही है फ्लोरिजन। ओके, एफटी जीन जो है एक्टिवेट होने के बाद एक्चुअली हाइपोथेटिकल हार्मोन सीक्रेट होता है लीफ में, वो फ्लोएम के साथ ट्रांसपोर्ट होके जाता है स्टेम को, देन इसमें फ्लावरिंग करवाता है। ओके, देन फ्लावरिंग करवाता है जो भी है। ओके, इट ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम टू particular stem, then flowering होता है। So answer is D. 14. Which plant is a long day plant? Tobacco is a short day plant. ग्लाइसिन वैक्स जो सोयाबीन होता है, ये सोयाबीन है, वो ये भी एक शॉर्ट डे प्लांट है। ये भी जानती हूँ मैं, एक शॉर्ट डे प्लांट। स्पाइनाक एक लॉन्ग डे प्लांट। ओके। 15. Wheat and henbane are. Wheat and henbane are actually long day plants. Okay. Number 16. In short day plants, flowering is induced by. शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या होता है कि क्रिटिकल वैल्यू से कम लाइट चाहिए उसको। ओके, फोटो पीरियड चाहिए। एक्चुअली सपोज ऐसे समझो कि क्रिटिकल वैल्यू एक्चुअली एक जनरल टर्म है। मतलब सपोज एक रूम में 10 पीपल है, उनका खाना सपोज क्रिटिकल है 1 प्लेट। वो ज्यादा खाएंगे तो पेट भी फट सकता है, एंड कम खाएंगे तो भूख मतलब भूख ही लगेगा, फुलफिल नहीं होगा। ओके, सो क्रिटिकल वैल्यू मतलब प्लांट के लिए क्रिटिकल वैल्यू मतलब लाइट का जो क्रिटिकल वैल्यू है उससे above or below plants never blooms or flower. This is called critical value. और कुछ प्लांट है जो बिलो क्रिटिकल पीरियड से लाइट का बिलो क्रिटिकल पीरियड से फ्लावरिंग करते हैं, उनको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। सो फोटो पीरियड शॉर्टर देन क्रिटिकल वैल्यू, एंड उनका जो डार्क पीरियड है उनका ऑन इंटरप्टेड होना चाहिए। मतलब कोई डार्क पीरियड में उनका कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए। सपोज दिस इज 24 hour and this is critical value, this point is critical value, and here is light period below the critical period, and this is dark period. Okay, डार्क पीरियड। बॉस डार्क पीरियड में
उसका अनइंटरप्टेड होना चाहिए, उसका डार्क पीरियड का कोई छेड़खानी बा कुछ होना नहीं चाहिए। ओके, so answer is C. Endothelium middle layer tapetum in anther are derived from एक्चुअली जो यंग आंथर होता है उसमें a group of mass meristematic tissue term as archisporial cell। archisporial cell divide होने के बाद एक्चुअली प्राइमरी पेराइटल सेल्स एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू देता है। एक्चुअली प्राइमरी पेराइटल सेल्स वो डिवाइड होने के बाद उसमें 3 लेयर जो आंथर का वॉल देता है, वन इज एंडोथेसियम, अदर इज मिडिल लेयर, इनरमोस्ट लेयर इज टापेटम। ओके, और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है वो डिवाइड होने के बाद स्पोरोजिनस सेल्स व सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल्स, उसके बाद स्पोर मदर सेल देता है बा माइक्रोस्पोर मदर सेल देता है। ओके, so according to option 2 is correct। okay, parietal in origin, hey, entry of pollen tube through micropyle is called porogamy। actually entry of pollen tube through any integument is called mesogamy, or through chala giant is called chalazogamy। so answer is porogamy। okay, through which cell of the embryo sac does the pollen tube enter the embryo sac। देखो एक्चुअली ओवुल को एंट्री करने के लिए 3 पाथवे है, पोरोगामी, चालाजोगामी एंड मेजोगामी। बट एम्ब्रियो सैक को एंट्री करने के लिए उसका एक ही पाथ है, साइनोर्जिड। एक साइनोर्जिड को डीजेनरेट करने के बाद वो एंट्री करेगा, तो डीजेनरेटिंग साइनोर्जिड होगा। एक्चुअली देखो पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक में क्या होगा, 2 साइनोर्जिड हो गए, एक सेल, 2 पोलर न्यूक्लियस एंड 3 एंटीपोडल सेल्स। ओके, पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक है, तो 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड कंडीशन। ओके, ये है 2 साइनोर्जिड, एक साइनोर्जिड को डीजेनरेट करके एंटर करेगा एम्ब्रियो सैक के अंदर। बट ओवुल को 3 पाथवे में एंट्री कर सकता है। ओके, सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 20, एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर बिकॉज एंजियोस्पर्म में 2 गैमीट होता है क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन। वन मेल गैमीट एक सेल के साथ फर्टिलाइज करके देता है जाइगोट, जिसको बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन बा सिंगामी। another male gamete सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब जो पोलर न्यूक्लियस है वो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन वो मिलके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनते हैं 2n, वो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। देन देता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, वो होता है ट्रिप्लॉइड इन नेचर। ओके, इज फाउंड इन न्यूसेलस। एक्चुअली ओवुल का मेन टिश्यू होता है, सो ओवुल में पाया जाएगा। सपोज ये ओवुल है, एम्ब्रियो से आके इधर जो सेल है सब होगा न्यूसेलस। ओके, ये सब सेल है न्यूसेलस होगा, ये होगा न्यूसेलस। ओके, ब्राइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन स्टैंस, एक फंजाई है। ओके, देन answer is 1 is correct। 23, the smallest morphological unit of photosynthesis is quandajom। इसको करेक्ट कर देना। क्वांडाजम मतलब एक्चुअली मिनिमम assemble of pigments to absorb 1 quantum of light। ओके, एक्चुअली क्वांडाजम एक्चुअली जो पार्टिकल होता है वो थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन में होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। Actually, they are structural and functional unity of chloroplast। Okay, so answer is option C। 24, this plant hormone causes fruits to ripen।
एक्चुअली एथिलीन एक गैसियस हार्मोन है जो एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जो फ्रूट में जो स्टार्च पॉलीसैकेराइड जो पॉलीमराइज फॉर्म में होते हैं उसको डिग्रेड करके सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करता है, तो उसके बाद फ्रूट राइपन होता है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। ओके। In Mendel, dihybrid cross, the phenotypic ratio expected in F2 generation is 9 is to 3 is to 3 is to 1. Okay. ये 9 पेरेंटल होगा, ये 1 भी पेरेंटल होगा, ये 3 हाइब्रिड होगा। ओके। आर फास्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एक्चुअली एक फंजाई है जिबरला फुजिकुराई, उससे वो एक्सट्रैक्ट किया गया था फर्स्ट टाइम। तो आंसर इज 2। During breeding, the removal of anthers from a bisexual flower is called emasculation. इमास्कुलेशन क्या प्रोसेस है जो वो मेंडल ने भी किए थे। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर को वो फोर्सेप्स के माध्यम से वो कट करके रिमूव कर दिया, वो प्रोसेस को बोलते हैं इमास्कुलेशन। इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच एंथर्स आर रिमूव्ड with the help of forceps. Okay, it is called the emasculation process. एक क्वेश्चन नंबर 28 एक जेनोटाइप दिया है, वो पूछ रहा है हाउ मेनी गामेट्स विल बी फॉर्म्ड। ओके, सपोज ए बी सी सी। एक्चुअली देखो इसका पॉसिबिलिटी देखेंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा ए, इसमें बी और कैपिटल सी। एक आएगा ए, देन बी, कैपिटल बी, देन स्मॉल सी। एक आएगा, देन कैपिटल ए, देन स्मॉल बी, ओके, देन कैपिटल सी एक आएगा, देन ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी आएगा। चार ही पॉसिबिलिटी आएगा। सो एक्चुअली इसको एक फॉर्मूला है 2 to the power n। n क्या होगा ना, n होगा जो हेट्रोजाइगस होगा, हेटेरोजाइगस होगा, हेट्रोजाइगस होगा। देखो इसको काउंट नहीं करेंगे। n क्या होगा इस केस में, 2 होगा, मतलब एक, मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी। सपोज 2 to the power 2 is equal to 4 टाइप्स ऑफ गैमेट। सपोज और एक देखेंगे, और एक देखो, सपोज इधर इस प्लेस में और कुछ दिया होगा तो कैसे करेंगे देखो। सपोज इस प्लेस में सपोज अलग कुछ दिया होगा तो ऐसे टाइप का दिया होगा तो कैसे करेंगे देखो। कैपिटल सब सब हेट्रोजाइगस है तो उसमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। 2 to the power n, इधर n हो जाएगा कितना ना, 1 2 3, क्योंकि वो सब हेट्रोजाइगस है। ओके, सो 2 to the power 3, तो 2 into 2 into 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, तो इधर इसमें होगा 2 to the power n, सो 1 2, 2 to the power 2 is equal to 4. Okay, so answer is A. Is correct. And who discovered the results of Mendel's experiment? Actually, Hugo de Vries and Chasmark and Correns, वो 3 साइंटिस्ट थे जो उस मेंडल्स का जो एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किए थे। ओके, मल्टीपल्स एलील्स आर प्रेजेंट। मल्टीपल्स एलील्स एक्चुअली होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम लोकस में प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेम लोकेशन में। मतलब व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम ना, जो जिसका सेंट्रोमियर पोजीशन एंड सेम सब कुछ सेम होता है, उसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम लोकस में मल्टीपल एलील प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।